Good evening to everybody. In the last lecture, we discussed on different type of approaches of Webster's and which are they and how many they are. Webster have six approaches. We are going to discuss one by one. So society into broad groups, each groups representing unique perspective. So there are different types of strata, different types of groups, and when two or more than two groups are come together, then it will make the society. If the question is arise in front of us that how the society will be make, then what could be our answer? Our answer should be that how the society is made. The question is like that. First, the people, a single people, we can take an example. People, okay. When two or more than two people are come together, then it make group, okay. And when two or more than two groups are come together, then it make the society, okay. And when the society and more than society come together, then it make the nation or country, okay. So this is the structure, this is the hierarchy, how the society is made up. So that's why the people, we think that society and society is a people. There is no difference society from the people, okay. But the matter is that how many people are come together. If two peoples are come together and they live together, that is called the society also, okay. And people groups, two people's group when come together and they live together, that is called the society. So in this way, this point of view, we can make the society there. So there are different type of perspective. Each and every groups have their own perspective, own aspect, own side. In this connection, it is worth noting that Webster distinguish and represents six different perspectives of the information society on the basis of technology, economic, occupational, spatial and cultural criteria. While we are going to study the information society, so according to Webster, information society have a six approach, and which are they? They are given together here: technology, economic, occupational, spatial and cultural criteria, okay. So let's one by one we will discuss on this. Already we have discussed on the technological aspect of society. Which kind of the society is called the technological society? It is a kind of society where the ICTs is used in large extent. Each and every office, each and every man, those who are living the society, they are using the ICT there, mean information communication technology, right? So information communication technology, what mean, and computer technology, they are not different from to each others. While we are talking about ICT, at that time we are talking about the computer technology, because by combination hardware and software, information technology will be prepared there, information communication technology will be prepared there, okay. So this is a combined concept ICT, where when we use this concept, it is known better what is meaning by that, okay. ICT, when we are talking about ICT,
then we are talking about technology, computer technology. Okay, computer technology. And computer technology made by the hardware and software, combination of hardware and software. So in this way ICT technology will be prepared there. Computer technology in what sense? All the kinds of the hardwares which are used to operate the computer and computer technology, they are included in the ICT, and all kinds of the software, application software, then basic software, fundamental software, okay, system softwares, all kinds of the softwares are come under the computer technology. And by combination of both hardware and software technology, it made the computer technology, and computer technology and ICT is not too much different. Okay, so we are using the many times ICT words, ICT concept, but we should know what is meaning by the ICT. ICT क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए. बहुत बार हम ICT के बारे में सुनते हैं और ये वर्ड भी यूज करते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि हमें ये कंसेप्ट के बारे में पता नहीं होता. तो ICT का मतलब, उसका मीनिंग तो हमें पता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज कॉल्ड द ICT. इसे हम ICT कहते हैं, लेकिन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को ही ICT कहा जाता है. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इसको हम कहते हैं. ओके, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी होता है, और ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को हम ICT कहते हैं. राइट. तो इस तरीके से एक कंसेप्ट समझने के बाद जब हम इसका यूज करते हैं या कहाँ पर पढ़ते हैं, तो हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि इसका मतलब क्या होता है. ओके, नहीं तो बहुत सारे लोग को ये पता नहीं होता कि ICT मीन व्हाट. वी आर जस्ट listening about that ICT, but its concept we do not clear at all. And ICT is nothing but the information communication technology. So here information word is include also, communication word is include also, and technology word is include also. So while we are using the computer technology, a lot of information will be generated there, and that is why information word is taken there. Communication, when the computer system will be implemented into the organization, in the society, in the country, at that time the exchange of information will be going on there, and that's why that is called the communications. And technology word used in the sense of computer technology. Okay, so in this way, by combination of three word, ICT word will be prepared there. Okay, first one is a information, second one is a communication, and third word is a technology. Okay, so three words are most important there, and by combination of these three words the new concept will be prepared there, ICT. Okay, so information, how it will be generated while we are using the ICT. Communication, how it possible while we are using the technology, computer technology. And technology in the sense when hardware system and software system are come together, combinedly used, then computer technology is made there. Okay, so in this way, by combination of three concept, it will be made ICT. Okay, so the most common definition is highlight, increase
information and communication technology, that is called the ICTs, as signaling the emergence of the information society. Okay. So in large extent, in large number of offices and institutions, school and colleges, okay, government and non-government organizations, while we using the ICT, at that time new society will be emerged there, okay, which is based on the ICT as well as which is based on the communication, which is based on the information. तो इस तरीके से जिस सोसाइटी में आईसीटी का यूज होता है उस सोसाइटी में नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती है, इंक्रीज होती है, और फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होने लगता है, प्रॉब्लम सॉल्व होने लगते हैं, ओके, और टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ता है. इट इज सजेस्टेड ऑफन इम्प्लिसिटी दैट आईसीटी बोथ डिफाइन एंड क्रिएट इंफॉर्मेशन सोसाइटी. तो इस तरीके से यहाँ पर आईसीटी के जरिए इंफॉर्मेशन सोसाइटी का निर्माण करने का काम किया जाता है. तो आपके सामने एक सवाल खड़ा हो सकता है कि आईसीटी और इंफॉर्मेशन सोसाइटी का क्या कनेक्शन है. आईसीटी का यूज करने से इंफॉर्मेशन सोसाइटी स्ट्रांग होती है क्या, और उसको बढ़ावा मिलता है क्या, उसका डेवलपमेंट होता है क्या. इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके मन में आ सकते हैं, लेकिन इसका जवाब हाँ है, क्योंकि इसमें 3 शब्दों का कॉम्बिनेशन हुआ है, जैसे कि इंफॉर्मेशन इटसेल्फ, कम्युनिकेशन, while whenever or wherever information will be come there, then communication is possible, because without information communication cannot be possible, and this informative communication is possible with the help of technology, okay, otherwise it cannot be possible. It is possible, but in most development is not possible in the communication without the technology, okay. If we are compare the traditional communication and earlier modern communication, there is a lot of difference between two them, okay. Nowadays we are using the mobile computers and tabs, okay, for making the communication, for exchange the information. But earlier days, while we are compare, telephonic wire is there for making communication, a lot of time will be wasted there, and we try to communicate with the help of letters, and we send the letter from one place to another place, and it will take a lot of times, okay. And before that also we are using the pigeon to send the letter from one region to another regions, okay, and the messenger also we will use from one place to another place. We used to send him from one place to another, from one country to another, from one city to another. So these would wasted a lot of times, and the message would be sent from one place to another place. It will take a lot of times. तो इस तरह से अब अर्लियर कम्युनिकेशन के बारे में पता करोगे तो बहुत सारे लोग इसमें एंगेज रहते थे कम्युनिकेशन में. एक मैसेंजर भेजा जाता था वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो इसमें बहुत सारा टाइम समय वेस्ट होता था, ओके. और कभी कभार मैसेज सही जगह पे पहुंचता नहीं था. जो मैसेंजर रास्ते में जाता था वो इतना लंबा था कि पैदल चलने से उसका अंत हो जाता था. मैसेज उस तक पहुंचा या नहीं ये कंफर्म नहीं होता था. और कबूतर भी, जिसे हम पिजन बोलते हैं, वे भी मैसेज सेंड करने का काम करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स और बहुत सारे वेपन और बहुत सारे मीडियम का यूज़ किया जाता था मैसेज सेंड करने के लिए अर्लियर टाइम में. लेकिन इट इज़ अ
वेस्टिंग ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी, ये बहुत वेस्ट जाता था। लेकिन मॉडर्न एज का भी आप विचार करोगे तो उसमें ईमेल है, लैपटॉप है, मोबाइल है, आप एक सेकंड में कॉलिंग करके दूसरे देश में कॉलिंग कर सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो। इस तरह की इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस आपको प्राप्त हुई है। ईमेल से आप तुरंत मैसेज भेज सकते हो फ्यू सेकंड में। ओके, तो इतना कुछ बदलाव अभी इस मॉडर्न एज में आया है। तो ये सभी बदलाव जो आए हैं ये किस टेक्नोलॉजी की वजह से आए? एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से, जिसे हम आईसीटी बोलते हैं। और बहुत सारे मीडियम्स भी है, सोशल मीडिया वगैरह, उसके ज़रिए हम अपना मैसेज वन प्लेस टू अनदर प्लेस को भेजते हैं इमीडिएटली। ओके, तो किसका कमाल है? ये कोई जादू वगैरह नहीं होता है, कोई मिरेकल नहीं होता है, लेकिन ये अपने आप तुरंत होता है। जिस चीज़ को करने के लिए हमें कुछ महीने लगते थे, कुछ दिन लगते थे, अभी इस चीज़ को करने के लिए हमें 1 घंटा, 1 मिनट और 1 सेकंड भी लगता है। तो इतना कुछ बदलाव ये टेक्नोलॉजी की वजह से आया है। देन इकोनॉमी, तो इस तरह से इंफॉर्मेशन सोसाइटी को डेवलप करने के लिए टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण रोल होता है। फिर इकोनॉमी, दिस सजेस्ट दैट इंफॉर्मेशन सोसाइटी इज one in which the contributions of information business and trades has expanded over time, now outweigh manufacturers and cultures in terms of contributions of gross national product. Okay, generally such analytics adopt the terms and information economy to describe a situation in which information industry command major proportions of GNP. Okay, तो उसके बाद इकोनॉमी का क्या रोल होता है, इकोनॉमी कैसे बनती है और इकोनॉमी को हम किस तरह से बिहेव करते हैं, इसका मतलब हमें यहाँ पर देखना है। सो इकोनॉमी इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी काइंड्स ऑफ सोसाइटी, विदाउट दैट नो सोसाइटी कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, अभी इस मॉडर्न एज में यदि आप विचार करोगे तो इकोनॉमी को अन्य साधारण महत्व दिया जाता है। इसे लाइफ ब्लड भी कहा जाता है सोसाइटी का। जैसे कि व्यक्ति को चलने के लिए अन्न, वस्त्र, निवारा, इन 5 मूलभूतों की ज़रूरत होती है, उस तरह कंट्री और सोसाइटी को चलने के लिए और चलाने के लिए इकोनॉमी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए उसको लाइफ ब्लड कहा जाता है। ओके, तो हम अपना ही उदाहरण ले सकते हैं। सोसाइटी में अगर हमें रहना है और सोसाइटी के साथ सभी चीज़ें करनी है तो हमें मनी की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है। विदाउट पैसे कुछ नहीं चलता। जो आप अपनी जो प्राइमरी नीड्स और सेकेंडरी नीड्स फुलफिल करने वाले समाज के जरिए, समाज में रहकर, तो उसके लिए आपको मनी की ज़रूरत होती है। विदाउट मनी यू कांट डू एनीथिंग। ओके, जैसे कि हम सुबह से उठकर शाम तक जो सारी क्रिया करते हैं, उसमें जो क्रिया होती है वो नॉन इकोनॉमिकल होती है, लेकिन कुछ जो व्यवहार होते हैं वो इकोनॉमिकल होते हैं। जैसे कि हम कुछ परचेस करते हैं तो उसे पैसे देने पड़ते हैं, पेट्रोल डालते हैं गाड़ी में तो उसको पैसे देने पड़ते हैं, कुछ खरीदते हैं तो उसको पैसे देने पड़ते हैं। तो ये सभी जो चीज़ें होती है, व्यवहार जिसे बोलते हैं, ये एक्सचेंज ऑफ थिंग्स एंड मनी से होता है। विदाउट मनी इट कैन नॉट बी पॉसिबल। तो विदाउट मनी इस पॉसिबल नहीं होता। यदि हमारे गाड़ी में पेट्रोल नहीं है और सुबह हमको बाहर जाना है या जॉब को जाना है, यदि हम गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालेंगे तो गाड़ी बाहर नहीं निकल सकती और बिना गाड़ी के हम बाहर नहीं निकल सकते। यदि हमें लंबा सफ़र करना है, लंबा जाना है, तो फिर विदाउट व्हीकल हम जा नहीं सकते और हमारे पास फिर पैसे नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो बिना पेट्रोल डाले हम गाड़ी निकाल नहीं सकते, व्हीकल निकाल नहीं सकते। तो इस उदाहरण से हमें ये समझ में आता है कि बिना पैसे व्हीकल नहीं चलता,
फिर हमारा जो काम बनने वाला होता है, होने वाला होता है, वो भी नहीं होता। ठीक उसी तरह से सोसाइटी का भी है। पूरी सोसाइटी यदि हमें रन करनी है या कंट्री हमें चलानी है, और जो हम पीपल इलेक्टेड करके हमारे कंट्री चलाने के लिए उन पर जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो कंट्री को चलाने के लिए सभी चीज़ें की आवश्यकता होती है, लेकिन मनी की आवश्यकता होती है। विदाउट मनी कोई भी कंट्री या सोसाइटी नहीं चलता है। जैसे कि यदि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, और वो काम क्यों करते हैं? अपनी इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन के व्यतिरिक्त सभी जो नीड्स होती है, प्राइमरी सेकेंडरी नीड्स, वो फुलफिल करने के लिए काम करते हैं। और फिर काम क्यों करते हैं? तो हमें हमें पैसा मिलेगा, इसलिए वे काम करते हैं, क्योंकि उन पैसों के सहारे वे अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी नीड्स पूरी कर सकते हैं। तो ये जो पूरा चक्र आपने यहाँ पर देखा, तो किस तरह से चक्र फिरता है, घूमता है, ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारा जो चक्र है पैसों की वजह से ही फिरता है, और फिर सोसाइटी चलती है, देश चलता है। यदि पैसे ही किसी के हाथ में नहीं रहा, जिसे हम चलन तुटवड़ा बोलते हैं। चलन तुटवड़ा म्हणजे क्या? ये इकोनॉमिकल कंसेप्ट है। यदि किसी भी देश में पैसे ही ख़त्म हो गए, तो फिर लोगों को जो चीज़ें परचेज करना है, परस्यू करना है, तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो कैसी चीज़ खरीदी करेंगे? कोई चीज़ देगा नहीं, तो उनको बहुत बड़ी दिक्कत, प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि हमारे भारत में नोटबंदी की गई थी कुछ साल पहले, तो लोगों के हाथ में पैसा आना बंद हो गया था, और लोग कन्फ्यूजन हो गए थे। जो पैसा था उनके पास, वो मार्केट में चल नहीं रहे थे, और जो न्यू करेंसी आने वाली थी उससे कैसे चलाना, सभी कन्फ्यूजन था। तो फिर पेमेंट कैसे करना, फिर ऑनलाइन को बढ़ावा मिला। तो बहुत सारे दिक्कत लोगों को झेलनी पड़ी उस समय, और ऐसा लग रहा था कि कुछ दिन, कुछ समय के लिए समाज रुक गया है, कोई क्रिया नहीं हो रही है। और फिर नोटबंदी के बाद कोरोना आया, तो फिर वैसी ही सिचुएशन निर्माण हुई थी। सब जो बाहर निकल के अपना पैसा कमाने जाते थे लोग, तो उनको घर में ही बैठने को कहा गया। तो ऐसा लग रहा था अभी सब थम गया है, समय थम गया है, सब सोसाइटी थम गई है, लेकिन लोगों का जीवन चल ही रहा था। और फिर बाहर नहीं जाएंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे, और पैसे नहीं कमाएंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा, और फिर घर नहीं चलेगा तो फिर सब बच्चे, सब लोग भूखे मर जाएंगे, और इस तरह से सोसाइटी का क्या होगा? ऐसे बहुत सारे सवाल इस दो संकट में हमें आए थे, और बहुत सारी चीज़ें हमें इस दो संकट ने सिखाई है। तो दोनों संकट में पैसा कितना इम्पोर्टेंस होता है, ये भी हमने यहाँ पर देखा। तो इसका मतलब इकोनॉमी इज कॉल्ड द लाइफ ब्लड ऑफ सोसाइटी। विदाउट इकोनॉमिक सिचुएशन वी कैन नॉट रन द सोसाइटी और एनी कंट्री। तो इंफॉर्मेशन सोसाइटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए इकोनॉमी का बहुत बड़ा योगदान होता है। Occupational, this approach is most closely associated with the Daniel Bell's theory post industrialism। तो occupational approach जो है, यह पोस्ट इंडस्ट्रियलिज्म थियरी के जैसे ही है। तो इंफॉर्मेशन सोसाइटीज एंड वन इन विच मोस्ट जॉब्स आर इंफॉर्मेशनल। तो ऑक्यूपेशनल जो सोसाइटी होती है, ऑक्यूपेशनल जो बिजनेस को हम बोलते हैं, तो इंफॉर्मेशन सोसाइटी में जो जॉब होते हैं वह इंफॉर्मेशन बेस होते हैं। और इंफॉर्मेशन के बेस पर कौन सी जॉब हो सकते हैं? रेफरल सर्विस, इंफॉर्मेशन सर्विस
प्रोवाइड कर सकते हैं, नॉलेज के बेस पर होते हैं। तो यहाँ पर नॉलेज के बेस पर हम अपना पैसा कमा सकते हैं, या इनकम बढ़ा सकते हैं, और इनकम बढ़ा तो ग्रॉस इनकम अपने आप बढ़ जाता है, जीएनपी जिसे बोलते हैं। So, which kind of the occupations are going on in the society, like a researcher, lawyer, counselor, and teachers, information intensive, involving information production, analysis, and communication. Journalist and outcome is change in condition rather than an object. तो इस तरह से इस पर रिसर्चर भी आते हैं, लॉयर्स आते हैं, काउंसलर आते हैं, टीचर्स आते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग इसमें आते हैं। Communication and outcomes is change and conditions rather than object. This is an this is contrast with the industrial society job such as machine operations and mining, where the product is physical good and the labor is largely manual. Okay. तो इस तरह से इंफॉर्मेशन सोसाइटी में किस तरह का ऑक्यूपेशन हम चलाते हैं, ऐसा सवाल आपके मन में आ जाता है। तो सभी ऑक्यूपेशन या बिजनेस होते हैं वो इंफॉर्मेशन बेस होते हैं, और ये सभी जो बिजनेस है इंफॉर्मेशन सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मदद करते हैं। Then partial, here the stress is network along which information flows, and information networks have profound effect on organization of times and space, as well as on other relation, allowing real-time communication on planetary scale. Manual castles theology information age is the major statement of this position. It is a synonymous with what he terms and network society, the metaphor of novelties along scope and telecommunication system. Okay. So in this way we can mention all kinds of the things here which is the help, which are help to develop our society. Okay. Then the major statement of this position is synonymous with what the terms network society and the metaphor of normalities along scope and telecommunication system which enable movement may be thought central information society, right? So we have been discussed on the three elements like technology, economic, occupational as well as spatial. Now we are going to see the fifth elements, cultural. This approach is one which traces the growth of symbols and sign over recent decades, and information society being one in which there is pervasive televisions, advertising, play or lifestyle, multiple in these cities and many hybridized musical expression, the world wide web and so on. Okay. Cultural in the sense we try to develop our society economically, politically, then technologically, spatially, as well as simultaneously we should develop our society culturally. Okay. So what mean culture? Culture means everybody know that the lifestyle of peoples. Okay. What kind of the dress they wear and what kind of the hairstyle they will use in their day-to-day lives, and what kind of the cultures they want to participate. Okay. So all kinds of the things are most important in the cultural aspect, and we can say that
each and every country have their own cultures, okay, and those people who are there who are living in their country, they have developed their own cultural system, okay, means their livelihood and their lifestyle, their hairstyle, their cloth style, okay, all kind of the style are included in the cultural. तो इस तरह से हर एक देश का एक अपना कल्चर होता है, और जो लोग जिस देश में रहते हैं वह अपना कल्चर किस तरह से डेवलप हो सके उस तरह से वह प्रयास करते हैं। जैसे कि सिंधु संस्कृति हम बोलते हैं तो उनकी एक लाइफस्टाइल थी, जब हम उसे पढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति, ओके, हड़प्पा कल्चर, सिंधु संस्कृति कल्चर, तो अलग अलग स्टाइल उन लोगों की थी, लेकिन हम आज भी उनका स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वो लोग किस तरह के थे, किस तरह के काम करते थे, किस तरह के पोशाक पहनते थे, ओके, और कौन सी चीज़ों को महत्व देते थे। इस तरह से सभी चीज़ें हम उसका स्टडी करते हैं। और आज भी हम जब हमारी इंडियन संस्कृति के बारे में स्टडी करते हैं तो हमारी लाइफस्टाइल क्या है, हेयर स्टाइल क्या है, किस तरह से हम पोशाक, किस तरह का इंटरेस्ट हम डेवलप करते हैं, सभी का स्टडी हम यहाँ पर करते हैं। तो ये सारी बातें इंफॉर्मेशन सोसाइटी डेवलप करने के लिए हमें मदद करती है, ओके। जिस देश की कल्चरल सिस्टम स्ट्रांग होती है उस देश की इंफॉर्मेशन सोसाइटी भी स्ट्रांग होती है। हम किस चीज़ को ट्रेस करते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, इसका महत्व बड़ा होता है। जिस संस्कृति में नॉलेज को महत्व दिया जाता है तो इंफॉर्मेशन को महत्व दिया जाता है, तो ऑल पीपल ट्राई टू बिकम द नॉलेज एंड नॉलेजेबल, ओके, और फिर उस नॉलेज के बेस पे वो अच्छा खासा कमाते हैं, स्किल डेवलप करते हैं, स्किल डेवलप करने के बाद बिजनेस सर्विस में कमाते हैं, फिर अपना आई इनकम बढ़ाते हैं, आई इनकम बढ़ने के बाद ग्रॉस नेशनल इनकम बढ़ता है, और फिर उस तरह से इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। तो हमारी कल्चर जो होती है तो नॉलेज बेस होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन बेस होनी चाहिए, ताकि हम नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को ही महत्व दे सकें। और यदि इंडियन कल्चरल बारे में हम सोचते हैं तो हमारी जो कल्चर है वो बहुत सारी चीज़ों को तो महत्व देती है, लेकिन नॉलेज को बड़ा महत्व देती है, ये हम यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते। और फिर उसकी वजह से ही इंडियन नॉलेज जो ये सब्जेक्ट है ट्रेडिशनल नॉलेज से संबंधित IKS, यस, ओके, तो इंडियन नॉलेज सिस्टम ये सब्जेक्ट अभी हमने इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कंपलसरी किया है हर एक कॉलेज को, हर एक यूनिवर्सिटी को, और लोग अभी इसको पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे। तो इसका मतलब हमारी जो नॉलेज सिस्टम है, हमारी जो कल्चर है वो नॉलेज के बेस पर है, नॉलेज सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारा देश चलता है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम नॉलेज को ही देते हैं। ये ट्रेडिशनल नॉलेज से हम ये देख रहे हैं, जो हमारा वैदिक जो लिटरेचर है ये भी ये बताता है कि सबसे ऊपर नॉलेज को हमने रखा है, क्योंकि हमें पता है कि नॉलेज के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसके हिसाब से ही हमारी एजुकेशन सिस्टम होनी चाहिए, ताकि हम नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को इम्पोर्टेंट दे सके, और जिसकी वजह से हमारी इंफॉर्मेशन सोसाइटी और नॉलेज सोसाइटी और भी स्ट्रॉन्ग बन सके, ओके। Now we are watching that theory. This suggests that information society is one of in which theoretical information knowledge takes precedence over the practical and is constitute
of virtually everything that is done. Okay, तो इस तरह से थ्योरी भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट होती है इस पॉइंट ऑफ व्यू में, और वो विच इज एब्स्ट्रैक्ट जनरलाइज एंड confined in takes precedence over the practical and is constitutive and virtually everything is that is done. This is contrasted with previous societies in which practical exigency, know-how and custom predominated. Okay, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि थ्योरी कितनी इम्पोर्टेंट है इंफॉर्मेशन सोसाइटी डेवलप करने के लिए. Takes precedence and over the practical and is constitutive of virtually everything that is done. This is contrasted with previous societies in which practical exigency, know-how and custom predominated. Okay. तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वेबस्टर 6 पॉइंट्स एस्पेक्ट कितने इम्पोर्टेंट होते हैं इंफॉर्मेशन सोसाइटी डेवलप करने के लिए, इसके बारे में हमने यहाँ पर जाना वन बाय वन. नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी, व्हाई वी शुड डेवलप द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, व्हाट इज द बेनिफिट फॉर पर्सन, फॉर द सोसाइटी इटसेल्फ एंड द नेशन. किसी व्यक्ति को, संस्था को या किसी देश को इंफॉर्मेशन सोसाइटी का क्या उपयोग होता है, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए. क्यों हर एक देश इंफॉर्मेशन सोसाइटी स्ट्रॉन्ग करना चाहता है. ओके, नॉलेज सोसाइटी स्ट्रॉन्ग करना चाहता है. तो इसके पीछे कुछ वजह है. यदि व्यक्ति अपना विकास, आंतरिक विकास या बाह्य विकास करना चाहता है, तो नेचर का ये नियम ही है, हर एक व्यक्ति को अधिकार है अपना अंतर्बाह्य विकास करने का. ठीक उसी तरह से संस्था हम क्यों स्थापन करते हैं, संस्था का अंतर्बाह्य विकास करने के लिए. ओके, और संस्था स्थापन करने के बाद हम संस्था का अंतर्बाह्य विकास करने का विचार करते हैं. ओके, और जो देश अस्तित्व में आता है वह देश भी अपना अंतर्बाह्य विकास करने का प्रयास करता है. और ठीक उसी तरह से हर एक देश, हमारा जो समाज है वो किस तरह से डेवलप हो सके इसके बारे में हमेशा सोचता है, और वो सोचने का नैतिक अधिकार उस देश को है. तो इस तरह से हर एक सोसाइटी भी अपने आप को डेवलप करने का प्रयास करती है. जैसे कि व्यक्ति खुद को डेवलप करने का प्रयास करता है, संस्था खुद को डेवलप करने का प्रयास करती है, ठीक उसी तरह से हर एक समाज भी अपने आप को डेवलप करने का प्रयास करता है. ओके, तो फिर ग्रुप होगा और सोसाइटी होगा, ये भी उसको अपवाद नहीं है. तो उसके बेनिफिट क्यों होते हैं, क्या होते हैं डेवलप करने के लिए. जैसे व्यक्ति खुद को डेवलप करना चाहता है तो वो सोचता है कि ये डेवलप होने के बाद हमारी प्राइमरी नीड्स पूरी हो सकती है, फिर सेकेंडरी नीड्स पूरी होती, तो हम कंफर्टेबल लाइफ जीने लायक बन सके, इसलिए व्यक्ति खुद को डेवलप करना चाहता है और ये एडवांटेज उसको मिलते हैं. ओके, तो फिर सोसाइटी भी खुद को डेवलप करना चाहती है. यदि सोसाइटी पूर है तो हम रिच कैसे बन सकते हैं ये विचार करती है. सभी अत्याधुनिक वेपन से हम कैसे सज्ज हो सकते हैं,
सभी न्यू टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पर कैसे निर्माण की जा सकती है और उसका उपयोग हम डे टू डे लाइफ में कैसे कर सकते हैं। ओके, हमारी एजुकेशन सिस्टम मॉडर्न कैसे बन सकती है जो हर एक देश की एजुकेशन सिस्टम से कंपटीशन कर सके। रिसर्च में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं ताकि हम नए कुछ निर्माण कर सके, नया कुछ निर्माण कर सके और हमारे देश को डेवलप कर सके। तो हर एक देश, सोसाइटी, संस्था, व्यक्ति अपने आप को डेवलप करना चाहता है ताकि उनको खुद का बेनिफिट मिल सके। तो बेनिफिट किस प्रकार से मिलते हैं इंफॉर्मेशन सोसाइटी में, ये हमें यहाँ पर देखना है। देयर आर n numbers of benefits we can take from the information society. So greater efficiency and productivity in business and organizations. यदि इंफॉर्मेशन सोसाइटी डेवलप हुई तो उसमें सभी प्रकार के लोग एजुकेटेड होते हैं, वेल एजुकेटेड, वेल प्रोफेशनल, वेल इंटेलेक्चुअल, वेल स्किल्ड फुल। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रोडक्ट करते हैं, एफिशिएंट होते हैं, तो उसके जरिए वो अपना बिजनेस बढ़ाते हैं। जो अपने देश में बिजनेस चल रहे हो उनको बढ़ावा मिलता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जैसे हम चाइना और जापान का यहाँ पर विचार करते हैं तो इसमें हमें ये यहाँ पर देखने को मिलेगा कि वहाँ की इंफॉर्मेशन सोसाइटी स्ट्रॉन्ग है, लोग पढ़े लिखे हैं, तो इसमें उनको कार्यक्षम इसका उपयोग उनको कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए होता है। और जब कार्यक्षमता बढ़ती तो स्किल बढ़ते हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, फिर ज़्यादा उत्पन्न होने लगता है, फिर ज़्यादा उत्पन्न बढ़ता है तो जीएनपी बढ़ता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं। और जितना जीएनपी बढ़ता है उतनी ही देश की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है। ओके, इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो इसमें क्या होता है, और इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज बढ़ते हैं। ओके, आप ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लेते हो तो इसमें क्या होता है, फिर आपको अलग अलग प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ अपने सामने आती है और कौन से अपॉर्चुनिटी लेना ये अपने आप पर डिपेंड रहता है। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग हम कर सकते हैं जैसे कि इंटरनेट के ज़माने में एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर अपना एजुकेशन यहाँ पर ले सकते हैं। Increase opportunity for education, lifelong learning, improved healthcare through telemedicine and other application. तो इंफॉर्मेशन सोसाइटी में हेल्थ केयर जो सिस्टम होती है स्ट्रॉन्ग होती है, और जिस देश की हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रॉन्ग होती है उनकी आयुर्मान बढ़ती है, उस देश के लोगों की आयुर्मान बढ़ती है, वे हाई लेवल का जीवन जीने लगते हैं, हाई प्रोफाइल जीवन जीने लगते हैं, सभी उनका कंफर्टेबल होता है, सभी लाइफ कंफर्टेबल होता है और सभी चीज़ें ऑन द स्पॉट मिलती है उनको। ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं होती, स्ट्रेस में रहने की ज़रूरत नहीं होती। प्राइमरी नीड के लिए वो जितना नहीं झगड़ते उतने सेकेंडरी नीड उन्हें सहज मिल जाती, जितना हम झगड़ते उतना वो नहीं झगड़ते। हमारा भारत का यदि हम विचार करें तो इंफॉर्मेशन सोसाइटी इतनी स्ट्रांग न होने की वजह से हर एक को नॉलेज नहीं है यहाँ पर, बहुत सारे लोगों को, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते, तो फिर ब्रेड और बटर के लिए वे अपना लाइफ पूरा बिता देते हैं और उसके अलावा वे कुछ नहीं कर पाते। जीने के लिए जीते हैं ओनली, खाने के लिए जीते हैं, प्राइमरी नीड्स अन्न वस्त्र निवारा, ये तीन चीज़ें उनको बाहर नहीं निकलने देती, इसमें ही वो पूरा लाइफ अपना बिता देते हैं। और फिर एजुकेशन और हेल्थ तो अलग की बात है, जैसे कि उन्होंने 5
फंडामेंटल नीड्स माने हैं अन्न वस्त्र निवारा, एजुकेशन और हेल्थ। ओके, तो ये प्राइमरी लेवल की नीड्स है और ये हाई लेवल की नीड्स है, एजुकेशन और हेल्थ। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग ये तीन प्राइमरी नीड के लिए जूझ रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं उनको अभी तक एजुकेशन नहीं मिलता प्रॉपर तरीके से, हेल्थ जो फैसिलिटीज़ है वो नहीं मिलती जो यहाँ पर बताई है हेल्थ केयर। तो हम अदर देश से अपनी तुलना कर सकते कि हम कितने पीछे और भी आज भी। तो हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप कंट्री में क्या होता है, अन्न वस्त्र निवारा और एजुकेशन हेल्थ केयर की जो प्राइमरी नीड्स है उन्हें इजीली मिल जाती है, उनके लिए उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है और उसके लिए उसको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता, इजीली मिलती है वो चीज़ें। और जो कंफर्टेबल सेकेंडरी चीज़ें होती है कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए, वो भी उनको इजीली मिलती है। तो वे देश कितने डेवलप होंगे ये हम यहाँ पर कल्पना कर सकते हैं। ओके, काम तो सभी करते हैं, हमारे देश में भी लोग काम करते हैं, वहीं पे भी काम होता है, लेकिन उनकी जो नीड्स है प्राइमरी नीड्स पूरी होती है लेकिन सेकेंडरी नीड्स भी इजीली भी पूरी करते हैं। लेकिन हमारे डेवलपिंग कंट्री का यदि हम विचार करते हैं तो केवल 80% जो लोग होते हैं वे प्राइमरी नीड्स पूरी करने के लिए जीते हैं और कभी कभार सेकेंडरी नीड्स भी पूरी कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ओके, तो इंडिया का विचार जब हम करते हैं तो इकोनॉमिकली बेस पे हम 3 लेवल पे इंडिया का डिवाइडेशन करते, टॉप, मिडिल क्लास और लो क्लास। ओके, इकोनॉमिकल बेस पे मिडिल क्लास यहाँ पर 20% लोग होंगे टॉप पर्सन के, और मिडिल क्लास जो लोग हैं यहाँ पे 60% लोग हैं और लो क्लास के 20% हम पकड़ते हैं। थोड़ा इधर उधर हो सकता है, 40-40 हम करते हैं तभी ये आ सकता है। लो लेवल की यानी कि जिनका इनकम बीपीएल जो अंडर बिलो है पावर्टी, तो 40% हम पकड़ते हैं यहाँ पर, मिडिल 40% और टॉप 20%। तो इतनी वैली, ग्रेट वैली हमारी सोसाइटी में अब देखने को मिलती है। तो ये जो लोग हैं 40% के, ये 3 जो नीड्स है हमारी, अन्न वस्त्र निवारा, ओके, फूड, क्लॉथ और शेल्टर, 3 चीज़ें प्राप्त करने के लिए अपना सारा लाइफ दे देते हैं, लेकिन ये चीज़ें उनको सही तरीके से नहीं मिलती। और 40 जो है वे अन्न वस्त्र निवारा और एजुकेशन और हेल्थ ये चीज़ें प्राप्त करने में लगे रहते हैं। ये भी बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं कि वे इन चीज़ों को पूरी करने के लिए अपनी लाइफ बिताते रहते हैं। और ये टॉप 20 के, उनको ये जो चीज़ें हैं इजीली मिलती है, इजीली ले सकते, और सेकेंडरी जो चीज़ें होती है इसमें वे भी वो प्राप्त करते हैं। ये प्राइमरी चीज़ें के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरह का कैलकुलेशन हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा समाज, कौन सी सोसाइटी प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी नीड्स को पूरा करने में सक्षम होती है। तो वह नॉलेज सोसाइटी होती है, इंफॉर्मेशन सोसाइटी होती है। लेकिन टॉप को हम इंफॉर्मेशन सोसाइटी और नॉलेज सोसाइटी यहाँ पर कह सकते हैं कि जो वेल डेवलप्ड है हर तरीके से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी नीड्स इजीली पूरी कर सकते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास है, लो क्लास के जो पीपल है इकोनॉमिकली, वे ये प्राइमरी नीड्स पूरी करने में ही अपना लाइफ व्यतीत कर देते हैं। ओके, तो ये क्यों होता है? वहाँ पर इंफॉर्मेशन सोसाइटी डेवलप न होने की वजह से।
नॉलेज सोसाइटी डेवलप न होने की वजह से। ओके, तो ग्रेट सोशल इंक्लूजन्स ऑफ marginalized groups and enhance cultural exchange and understanding and more sustainable planet through increased use of ICT in environmental monitoring and management। ओके, तो इस तरह से अलग अलग बेनिफिट्स एडवांटेज हमको यहाँ पर प्राप्त होते हैं ड्यू टू द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। कुछ चैलेंजेस भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कुछ चैलेंजेस कौन से देखते हैं, जैसे कि हमने बेनिफिट्स देखे, रिस्क इंक्लूजन ऑफ दोज विदाउट एक्सेस टू आईसीटी। ओके, तो इंफॉर्मेशन सोसाइटी में आईसीटी का यूज ज़्यादा होता है, लेकिन जिन लोगों को आईसीटी का पता नहीं होता, उसे कैसे यूज करना, वो वेल इंट्रोड्यूस नहीं होते, तो उनके लिए दिक्कत होती है। जैसे कि बिफोर 1990 के जो लोग थे, उन्हें आईसीटी के बारे में पता नहीं था, टेक्नोलॉजी कैसे हैंडल करना वे पता नहीं था, उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था, कंप्यूटर के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। लेकिन आफ्टर 1990 1990 के बाद जब आईसीटी हमारे इंडिया में इम्प्लीमेंट होने लगा, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का परिचय होने लगा, इंटरनेट का परिचय होने लगा, तो जो लोग पहले से ही सर्विस में थे उनको इस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर डिजिटल इंडिया वगैरह ये स्कीम हमने स्टार्ट की और सभी जगह पे हम आईसीटी की टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन करना हमने स्टार्ट किया। लेकिन जो पुराने लोग थे जिन्हें इस टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं था, तो प्रॉब्लम ये होने लगा कि वो टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे कर सके, तो उनको दिक्कत प्रॉब्लम होने लगी। तो यही रिस्क रहता है, जब जब नई टेक्नोलॉजी हमें परिचित होती है, तब उसका उपयोग कैसे करना, ये बड़ा रिस्क होता है। द नीड ऑफ इंक्रीज सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी प्रोटेक्शन। तो इंफॉर्मेशन सोसाइटी में सभी प्रकार के जो सर्विसेज है, प्रोडक्ट्स है, बिजनेस है, इंफॉर्मेशन बेस होते हैं, तो उसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जैसे कि आज हम देख रहे हैं मॉडर्न एज में सभी लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, नेटवर्क का यूज कर रहे हैं, मोबाइल का यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी इसके जरिए कर रहे हैं। सभी प्रकार के जो एक्सेस है हम नेट का यूज कर रहे हैं, लेकिन इसमें साइबर सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। जैसे कि बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, लोगों को डिसीव किया जा रहा है। ओके, तो इससे हमें मार्ग निकालने के लिए साइबर सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करनी होगी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करनी होगी, तभी ये संभव होता है। तो इसके लिए सिक्योरिटी प्राइवेसी प्रोटेक्शन का इम्पोर्टेंट होता है। और this is the age of information, and that's why the people who are revealing the informations everywhere, the internet is a kind of the platform where uh, the information easily available for each and everyone. Anybody can access information without any permission, and that's why the problem of information security and the problem of privacy will be created there. So to solve this kind of the problems, the information security, cyber security is one of the best way how we can make the strong our information security. So that's why a lot of solutions are given by the government, and guideline is also provided by the information department to each and every people how we can protect our information. The challenges of managing our increasing amount of data. So each and every moment the data is spreading, and that's why it is very difficult
challenge in front of us that how we can manage the data. तो हर एक क्षण को डेटा इतना निर्माण हो रहा है कि इस डेटा का कैसे मैनिपुलेशन किया जाए, ये सवाल हमारे सामने आता है, चैलेंज हमारे सामने आता है. So potential negative and impact on health and from too much screen times and others problems will be create, physical problems are will be create there. तो हर एक बच्चा from small to older people, so they are using the mobiles and internet, so that's why they are watching the lot of time screen, and the problem of their eyes and problem of backbones and problem of their physical condition will be create theirs. तो इस तरह से शारीरिक और मानसिक लेवल पे जो समस्याएं निर्माण हो रही है, ये भी एक चैलेंज हमारे सामने है. तो हम इसे कैसे रिमूव कर सकते हैं. द नीड फॉर इम्प्रूव लिटरेसी एंड यूजिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी. आईसीटी टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है, उसमें किस चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है, ये हमें यहाँ पर देखना ज़रूरी होता है. जैसे कि आईसीटी में हमें देखना कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में हार्डवेयर सिस्टम और सॉफ्टवेयर सिस्टम दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. और इसका यूज हमें कैसे करना है, तो इसके लिए हमें लिटरेसी की ज़रूरत होती है. टेक्नोलॉजी लिटरेसी हम चीज़ बोलते हैं. टेक्नोलॉजी का परिचय हमें होना ज़रूरी होता है, तभी हम ये कर सकते हैं. तो जैसे कि हमने एग्जांपल देखा बिफोर 1990 के जो लोग थे उन्हें टेक्नोलॉजी लिटरेसी नहीं थी, लेकिन टेक्नोलॉजी एज में वे प्रवेश कर रहे थे, जो पहले से ऑफिस में अपने ऑफिस में जॉब को थे, काम को थे, लेकिन उनको टेक्नोलॉजी लिटरेसी नहीं थी. तो फिर उन्हें टेक्नोलॉजी लिटरेसी प्रोवाइड की गई, उनको कंपल्शन किया गया कि आपको कंप्यूटर सीखना होगा. फिर धीरे धीरे वो कंप्यूटर का काम करने लगे और कंप्यूटर यूज करके वो मेन स्ट्रीम में आए, टेक्नोलॉजी की स्ट्रीम में आ गए. अभी ऐसा कोई भी कर्मचारी नहीं होगा किसी भी ऑफिस में कि जिसको कंप्यूटर के बारे में पता नहीं है, क्योंकि हर एक आदमी मोबाइल यूज करता है. तो मोबाइल इज नथिंग बट द स्मॉल स्केल कंप्यूटर and all kind of the functions which are available in the mobile as well as in computer as well as in tab, they are similar to each others, there is no lot of difference. तो छोटा बच्चा हो या बड़ा आदमी, from small child to old people, from uneducated people to educated people, all people are using the mobile. There is no need to take the education how to use the mobile. तो हर एक आदमी जो है अभी, जो पढ़ा हुआ है, जो पढ़ा नहीं है, तो दोनों भी मोबाइल का यूज कर रहे हैं. और किस तरह से यूज कर रहे हैं सभी को पता है. मोबाइल हाथ में आने के बाद हर एक आदमी, हर एक बंदा उसका यूज कर रहा है. देयर इज नो नीड टू प्रोवाइड द एजुकेशन, प्रोवाइड द लिटरेसी टू हिम. So at the same way the people are using the computers easily without any hurdle. So the need of careful regulation of ICT and to ensure they are used ethically. Okay. So ICT is a kind of the weapons, and while we are using that, we should follow the all kinds of ethical systems, rules and regulation. We should be follow that. And without rules and regulation, if we try to use these kinds of the ICT technology, then problem will become there. Okay. So in this way there are many points we have been discussed regarding the information and information society.
तो यहाँ पर हमने इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बारे में जाना। अब नॉलेज सोसाइटी का मतलब क्या होता है इसके बारे में हमें यहाँ पर जानना है। जैसे कि हमने इंफॉर्मेशन यानी कि क्या इसके बारे में जाना, और फिर इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्या होता है इसके बारे में जाना। नाउ वी आर गोइंग टू व्हाट इज मीन बाय द नॉलेज एंड व्हाट इज मीन बाय द नॉलेज सोसाइटी। सो नॉलेज इज नथिंग बट द ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, classified information, utilize information, that is called the knowledge. And where the people, those who are fond of knowledge, getting of knowledge, they are engaged always for getting the knowledge. Okay, they are knowledgeable people where they are living, that is called the knowledge society. It's very simple definition, right? तो नॉलेज सोसाइटी के डेफिनेशन हम इस तरह से कर सकते हैं कि जहाँ नॉलेजेबल लोग रहते हैं और वे हमेशा नॉलेज प्राप्त करने में लगे रहते हैं, नॉलेज प्राप्त करना उनका प्राइम गोल होता है। तो इस तरह से इस प्रकार की सोसाइटी को नॉलेज सोसाइटी कहा जाता है। द पीपल हु आर लिविंग एंड दे ऑलवेज इंसिस्ट for getting the knowledge, their prime goal is to getting the knowledge, that is called the knowledge society. तो सिंपल डेफिनेशन आप यहाँ पर बना सकते हैं। नॉलेज यानी कि क्या आपको पता है, हमने DIKW मॉडल में नॉलेज की डेफिनेशन की है। तो नॉलेज सोसाइटी की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। द पीपल दोज हु आर लिविंग इन द सोसाइटी, दे आर इंसिस्टिंग और दे आर गेटिंग टू रेडी for the knowledge. Their prime goal is for getting the knowledge. Such a kind of the people or such a kind of the society, it is called the knowledge society, right? So the term knowledge society refers the society in which the creation, dissemination and utilization of information and knowledge has become the most important factor of production. तो यहाँ पर भी एक जैसे कि हमने डेफिनेशन अभी की उसके हिसाब से और मिली जुली डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। ऐसी सोसाइटी की जहाँ पर क्रिएशन, डिसेमिनेशन, इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, नॉलेज प्राप्त करना, उसके यूटिलाइजेशन करना, ये सभी चीज़ें क्रिया और प्रक्रिया वहाँ पर होती है। इन सच अ सोसाइटी नॉलेज एसेट आर मोस्ट पावरफुल प्रोड्यूसर ऑफ वेल्थ, sidelining importance of land, volumes of labor, physical or financial capital. The term knowledge society has several meaning. नॉलेज सोसाइटी के बहुत सारे अर्थ भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से कौन सा अर्थ इम्पोर्टेंट है ये हमें यहाँ पर देखना है। The term knowledge society has several meaning. First, it is used by social scientists to describe, analyze the transformation toward so-called post-industrial society. So, according to the scientists, social scientists, they describe that the transformation toward that is called the post-industrial society. Okay, and the second, it is used refer to normative visions that nation or companies should aspire to fulfill. Okay, so according to the people in second point of view, normative visions, okay, that nation or company should aspire to fulfill. And the third perspective, it is used as a metaphor rather than the clear cut concept under which various topics are examined. Okay, so it is a kind of clear cut concept under which different types of topics are examined. This is the third understanding. And fourth understanding, it is a use interchangeably with notions such as a knowledge economy, knowledge driven economies, economies of innovations and the information society. तो फोर्थ एस्पेक्ट से
इसे किस नज़रिए से देखते हैं इस कंसेप्ट को, तो नॉलेज इकोनॉमी से कहा जाता है, नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी कहा जाता है, इकोनॉमीज ऑफ इन्वेंशन कहा जाता है, इनोवेशन कहा जाता है, और इंफॉर्मेशन सोसाइटी कहा जाता है। तो इस तरह से इसे अलग अलग नाम यहाँ पर दिए जाते हैं। ओके, so knowledge society is a formal association of people with similar interests why try to make effective use of their combined knowledge about their areas, internet, and the process of contribute to the knowledge. Knowledge society as a society that operates within the paradigm of economics information. It values human capital as prime input and information innovation. A knowledge society is well connected via modern ICT, dematerialized economy, and has access to relevant and usable information. Highly sophisticated physical infrastructures underpins these economic models and allows the delivery of the materials objects that are accessed and manipulated in the dematerialized world of modern ICT. तो इस तरह से अलग अलग मीनिंग्स हम यहाँ पर निकाल सकते हैं नॉलेज सोसाइटी के। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ओके, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं सोसाइटी जनरल टाइप की सोसाइटी है यहाँ पर, जहाँ में ऑल काइंड्स ऑफ द पीपल्स हु आर लिविंग, और उसमें हम इंफॉर्मेशन सोसाइटी और नॉलेज सोसाइटी दो सोसाइटी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट टू सोसाइटीज। ओके, तो फिर नॉलेज सोसाइटी में इंफॉर्मेशन सोसाइटी में इंफॉर्मेशन स्ट्रांग होती है, इधर इट इज अ सोसाइटी इन विच information related works like creation, distribution, dissemination, and utilization, all are conducted, that is called the information society. ओके, तो हम यहाँ पर एक छोटी सी व्याख्या हमारे हिसाब से according to our point of view, according to our own interpretation, we can do it. It is a kind of society in which information related jobs or works like creation, distribution, dissemination, and utilization of information, all works are conducted in this society, and that is why it is called the information society. तो हम हिंदी में ऐसे कर सकते, मराठी में ऐसे कर सकते कि इंफॉर्मेशन के संबंधी जो क्रिया है, क्रिएशन, डिसेमिनेशन, यूटिलाइजेशन, ओके, सभी जो क्रिया इंफॉर्मेशन के संबंध में चलती है जिस सोसाइटी में, तो उसे इंफॉर्मेशन सोसाइटी कहा जाता है। ओके, सो इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन हम यहाँ पर और भी कर सकते हैं। प्रोसेस डेटा, ओके, और ऑर्गेनाइज डेटा, क्लासिफाइड डेटा, उसे इंफॉर्मेशन डेटा, उसे इंफॉर्मेशन हम कहते हैं। ओके, और
नॉलेज के डेफिनेशन, इसमें नॉलेज इम्पोर्टेंट होता है और उसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है ये हमने देखा है। नॉलेज इज नथिंग बट द ऑर्गेनाइज classified process information that is called the data. Okay, knowledge. नॉलेज की व्याख्या इसके हिसाब से भी हम कर सकते हैं। इट इज़ अ नॉलेज सोसाइटी इन विच knowledge related works are conducted like a creation, distribution, classification, utilization and dissemination. Okay, that is called the knowledge society. और जैसे हमने इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बेनिफिट्स क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन सोसाइटी के ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, इसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ होती है, इसके बारे में भी हमें यहाँ पर जानकारी प्राप्त करना है। वास्तविक रूप से हम देखते हैं तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। इन्फॉर्मेशन को ही हम नॉलेज बोलते हैं और नॉलेज को ही इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब नॉलेज सोसाइटी और इन्फॉर्मेशन सोसाइटी में ज़्यादा फ़र्क नहीं हो सकता, और जो फ़र्क हमें यहाँ पर दिखाई देगा वो हम यहाँ पर स्पॉट करने वाले हैं, उस पर चर्चा करने वाले हैं। ओके, so today we will stop here, remaining part we will take tomorrow. Thank you.